रही हूँ. Okay, so first cue card is describe your first school. कुछ ये था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Describe your first day at school. Yes. Yes, ma'am. First day at school. Whose was it? Ma'am, Devangini. Devangini. Chalo. I had started my journey from Shreyas Vidyalaya. I think no one can forget the golden days of a school, as whenever people recall these days, it brings a bright smile on their faces. An elementary school is a training ground for every child. A first day of a school always ring a bell in everyone's mind due to fear or an excitement. Here I want to expound you about my initial day of a school. I was enrolled in a school which was just stone throw away from my home. Actually, my parents were really worried about me because I was an introvert kid. However, I was feeling blissful because I had a unique Doraemon bag and my favorite water bag. Additionally, there was no uniform at the first day. My father have dropped me at a school and he introduced me with my teacher. But when he was about to leave me there, I had held his hand as strongly as I can. After some time, he had drawn my mind towards some cartoon pictures on the wall of a classroom and the swings and the lots of toys around us. Meanwhile, my father left for his work and I didn't realize that. I had inculcated myself in playing with different pupils there and teacher was there who was helping us to overcome our bundle of nerves. Okay. Afterwards, I forgot to put up the timer. I'm sorry for that. Okay. I think you've spoken more than 2 minutes. Okay. देवांगिनी, मेरे को मेरी पर्सनल अगर आप फीलिंग मांगोगे ना इस क्यू कार्ड के बारे में, तो ये बहुत क्रैम्ड लग रहा था. किसी और को ये फीलिंग आई कि नहीं? Cram in the sense that she's reading it. मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने पहले स्कूल के बारे में कम बताया है, पहले की जर्नी पहले बता दी, ज्यादा बता दी. अलग बात है. ज्यादा दे दिया. हाँ, पर थोड़ा सा जैसे जैसे वर्डिंग्स यूज करी है, नेचुरल नहीं था. नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही थी दिवांगनी, जैसे आप कुछ सोच के एकदम से बोल रहे हो थोड़ा सा. ओके, आई वुड रियली प्रेफर, अगर आप रियल फीडबैक चाहते हो ना, तो अपना वीडियो ऑन करो साथ. ओके मैम. और तब पता चलेगा, ठीक है? अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो. और देखो, रिंग द बेल नहीं होता, रिंग्स द बेल. ओके, एक्सपाउंड वर्ड क्या यूज करा था आपने? एक्सपाउंड एक्सप्लेन के लिए यूज करते हैं. एक्सपाउंड, EXPOUND. हाँ, मेरे को पता है एक्सपाउंड, बट वो मत यूज करो. ओके मैम. स्टोन थ्रो स्टोन थ्रो अवे, नजदीक. स्टोन थ्रो एस. ओके, या यूज करा, किडनी यूज करना, कॉलोकियल स्पोकन वर्ड. ओके, स्पोकन इंग्लिश का लाइक इनफॉर्मल है थोड़ा. अच्छा, देन यू सेड एट द फर्स्ट डे. एट नहीं होता डे के लिए. on the first day. As hard as I can, as I could आना था. फादर का हैंड पकड़ा. हाँ. इनकलकेटेड का क्या मतलब है? अपना गलत वर्ड यूज करा ये. एंगेज्ड करना चाहिए था. एंगेज्ड कर देना चाहिए. I got busy with other students. Inculcate का मतलब होता है कोई चीज, मैं देख रही हूँ डिक्शनरी में आपको बताने के लिए. Inculcate का मतलब लर्न करना हो जाता है. for somebody to learn and remember ideas, moral pieces, to inculcate something into somebody. Inculcate इसका मतलब ये है, inculcate somebody with a sense of responsibility. ये आपने वो वहाँ बिल्कुल wrong word था ये वहाँ पे. ओके मैम. हाँ, तो मैम ये हाँ, is it compulsory to use complex word in speaking? No. नहीं, बिल्कुल नहीं. आई वुड से जो मेरी 8.5 बैंड जिन बच्चों के आए, वो आके मैम पता नहीं कैसे आ गए, मैम हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमको ऐसे लगा फ्रेंड से बातें करके आ गए. तो नेचुरल इज मोर इम्पोर्टेंट. सिंपल वोकैबुलरी यूज करें. हाँ, सिंपल. So can you please explain the meaning of inculcate once again? अभी मैंने इंस्टिल है किसी में कुछ इंस्टिल करना, कोई फीलिंग. अच्छा. हाँ, किसी चीज पे इंसिस्ट करना. इंस्टिल करना किसी में कोई फीलिंग.
ठीक है, that is वो it. डालना. That is it. Okay, next cue card है aquatic animal. Aquatic animal किसका था? जुबेर। Where? नहीं मेरा नहीं है. Where का नहीं? Describe a time when you made a promise to someone. It was mine. मैडम फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ट्री पे आता है या किसी एनिमल पे आता है और हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम क्या करें उसमें? ऐसे किसी ट्री पे बिल्कुल नॉलेज हो मैं नहीं मान सकती. आप मैंगो ट्री पे बोल दो और फिर मैंगो के गुण बोल दो और बोल दो मुझे तो हर वैरायटी का मैंगो स्वाद लगता है मैम, और इसके नाम बोल दो. और मैंगो ट्री का तो हर पार्ट काम में आता है. उसके पत्ते वो पूजा के लिए भी यूज करते हैं. एंड देन यू नो मैंगो से कितना कुछ बनता है. अब ट्री की बात कुछ भी बोल दो, उसकी वुड से फर्नीचर भी बनता है, आपको पता है, मैंगो वुड. ठीक है, और पिकल्स बनते हैं. मैंगो खाते हो आप, कितनी वैरायटी का मैंगो आता है. मैंगो और किस ट्री पे बोल सकते हो जो कॉमन ट्री है? मैडम नीम के ऊपर बोल सकते. हाँ, नीम ट्री के ऊपर बोल सकते हो. नीम ट्री के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है. ठीक है, यू कैन स्पीक ऑन. ये ऐसे होता नहीं है, आपको कुछ कोकोनट के बारे में बहुत बोल कोकोनट सकते के हैं। ऊपर बोलो. हाँ, कोकोनट पे बहुत कुछ बोल सकते हो. मैम बहुत सैंडलवुड पे भी. संदलवुड की ट्री पे बोल सकते हो. यस. ओके, Okay. नेक्स्ट क्यू कार्ड है. नेक्स्ट क्यू कार्ड अब देखो, वी डोंट वांट टू वेस्ट. मैम ये ट्री वाला क्यू कार्ड है. हाँ, बुक में शायद है, मैंने पहले कभी बनाया हुआ है. मैंगो पे भी बनाया हुआ है, बैम्बू पे बनाया, पर बैम्बू एक्चुअली एक तरह की ग्रास है. ग्रास है, राइट. हाँ तो उस पे भी बना हुआ है. ठीक है, पर इसको ट्री की तरह भी बैम्बू के फर्नीचर बनता है, तो यू कैन स्पीक ऑन दैट. इट एक्चुअली वुड नॉट मैटर. आई एम टेलिंग Okay. यू दैट. ओके, इफ यू कैन स्पीक ओके मैम. ऑन दैट. ओके, नेक्स्ट परमिंदर, आपका कौन सा है? पता नहीं मैम, मुझे आपने साइन किए थे. हाँ, कल असाइन किया नहीं कि. अब्दुल, आपका कौन सा है? मैम ये था line that you remember from a poem or हाँ, song. चलो आप अपना शुरू कर दो. अलाइन दैट. मैम प्लीज मैम मुझे भी एक बता दो टॉपिक. हरमन, ओके, Yes, आप ma'am. पोएटिक एनिमल बोल देना नेक्स्ट. ठीक है. मैम आई okay, आल्सो ma'am. वांट टू स्पीक. सना शेख. हाँ, सना, आप बैग यू वांट टू ओन बोल देना. मैम जी Okay, मेरा मैम. है। कोई बात नहीं, दिया ने बोल देंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, फर्स्ट मैम, डे दे स्कूल देना. बोल देना. सना, फर्स्ट डे एट स्कूल बोल देना. चलो ओके मैम. यस मैम. चलो चलो. मैम देना. अब्दुल जल्दी. Yes ma'am. मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, अब म्यूट रखना. ओनली अब्दुल की अनम्यूट होएगी. चलो अब्दुल, अनम्यूट करो. Yes ma'am. As we all know, music makes everything better. I like to listen to music, especially when I am traveling and when I practice my calligraphy. So at that time, I used to listen soft music. A line from I like to listen different genres of music. One song that brings a smile to my face whenever I hear it. It's a song from Kishore Kumar. He is the singer of that song, and the name of that song is "Yun To Akela Bhi Aksar." I remember it was my 7-year-old when I first heard this song on television with my family. So when I listened this song, I I just got I was so memorized by the lyrics and the soothing voice of singer Kishore Kumar. Now whenever I feel stressed, I take break from all my work and go outside. I put my headphones on and listen to this song several times, and after that I feel relaxed and peaceful from inside of my soul. So this song act as a stress buster for me, and I just love this song. गुड गुड गुड. ओके अब्दुल, आपने लास्ट में बोला दिस सॉन्ग एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्टर. सॉन्ग सिंगुलर है तो एक्ट नहीं आएगा. क्या आएगा? एक्ट्स. एस आएगा. Acts as सेवरल टाइम नहीं होता, सेवरल टाइम्स होता है. फिर आपने several बोला times. हाँ, आई वॉज मेमोराइज्ड बाय द सॉन्ग. यू वर नॉट मेमोराइज्ड बाय द सॉन्ग, यू वर मेस्मराइज्ड बाय द सॉन्ग. Okay, Mesmerized. mesmerized. Okay, Okay. that way. It was my 7-year-old when I first heard. When I was 7-year-old. I was 7. I was.
फिर आपने बोला यूज्ड टू लिसन, जब मैं कहीं जाता हूँ यूज्ड टू लिसन, यूज्ड टू का I मतलब है used अब to नहीं listen. सुनता हूँ, अब नहीं सुनता हूँ, यूज्ड टू Okay, कोई okay. वर्ड नहीं होता। Mhm. आई लिसन दिस Used सॉन्ग, to listen. यूज्ड I टू आना listen ही नहीं this. है, Okay. यूज्ड टू मींस अब नहीं सुनता हूँ। आई यूज्ड टू गो टू द गुरुद्वारा डेली व्हेन आई वाज इन स्कूल, नाउ आई डोंट। So how we say मैम like just मैं कहीं बाहर जाता हूँ और जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। whenever I go anywhere I listen to this song। Okay. हाँ, यूज्ड टू थोड़ी आएगा, ठीक है। Okay. ओके, सो नेक्स्ट इज, ये बड़ा अच्छा गया क्यू कार्ड, मैंने आपको गलतियां बता दी जो आपकी थोड़ी थोड़ी आई है, बट ऑन द होल यू स्पोक वेरी वेल। दिवांगिनी, स्पीड भी स्लो करोगे ना थोड़ी तो भी नेचुरल हो जाएगा। ओके मैम। आप पता है कैसे बोल रहे थे, आपको जैसे बहुत है कि बहुत ज्यादा मेरे को बताना है, मेरे बहुत ज्यादा बोलना है, ऐसे मत करना, ठीक है। और ओके कम मैम। से गलतियां भी कम होंगी, नेचुरल भी लगेगा, इट शुड बी नेचुरल, ओके, शुड श्योर मैम। गिव द फील ऑफ बीइंग नेचुरल, वो थोड़ा मिसिंग था, अदरवाइज आराम से 7 पे जाएगा। ओके ओके मैम। एनिमल किसने बोलना है? ओके सना आप मैम नेक्स्ट। मैम मेरा था। हाँ हरमन, मैम मेरे को कोई नेक्स्ट दे दो, कोई बात नहीं। नहीं नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पे बोल देना, अभी सना बोलती है। सना मैम मुझे डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट स्कूल है, वो हाँ बोलूं? हाँ वो बोल दो। ओके आर यू हैविंग योर वीडियो ऑन? नो। ओके मैम। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। Okay ma'am. To recall the memory of past and go back into the past years of my life, it is a bit difficult because I was very small at that age, and so here I would like to talk about the very first day of my new school when I have achieved good grades in my 10th standard. And I got an admission in a very reputed and well-known school of Ahmedabad. It is Nelson's Higher Secondary School. At the very first day of my school, after I entered my school, I was unaware of the geography of that school, and to end up my curiosity, one girl, I think that who was the old student of that school. She came to me and I asked her to assist me. She has taken me to she has guided me to view the whole school, and in the first lecture, it was an introduction class where we got the chance to know each other. To recall my memory, the second lecture was of psychology, and John sir was my psychology teacher. He was an South Indian and a very knowledgeable person, and also down to the earth. My English teacher was Santi ma'am. She was very kind-hearted, and later on, I learned so many good things from her, who become like idol for me. And I would like to say that before 10th standard, it was like study was not so interesting for me. And after my studies of 11th and 12th standard, my whole life changed as I gained knowledge about studies, and also the teachers of that school encouraged me in all other activities, and I was assisted in a very well mannered. Okay. It was nice to very spoken almost 2 minutes. बहुत अच्छा बोला है सना, आप थोड़ा घबरा रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत Yes, अच्छा बोल ma'am. सकते हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसा Yes, नहीं है। तो आपने बोला one girl she has taken me तब लगेगा अगर आपको अभी वो लेके गई हुई है कहीं। She have. पास्ट के लिए क्या बोलोगे? She had. She had taken me. She had taken me. took me. She took me. Simple past आएगा because time specify हो रहा है। First day at school. Okay. अच्छा मेरी बात सुनो, फर्स्ट डे एट स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ी आपने? हाँ मैम उन्होंने 10th स्टैंडर्ड का बताया है। नहीं, आफ्टर 10th 11th स्टैंडर्ड का मैंने बताया कि 11th के बाद जब मैंने फर्स्ट डे एट स्कूल अपना बता। मैम की बुक में जो है ना सना, वो अच्छा है कि उसके स्कूल के बारे में बताया मेरी फ्रेंड ने, और बिगिनिंग हुई फ्रेंडशिप की, वो अच्छा है, उसको रट लो। मेरी तो ये एडवाइस वाह, रट लो। नहीं रट्टा मत लगाओ, बहुत तो अच्छा आइडिया ले लो आप प्राइमरी स्कूल का कैसा होता है।
हाँ प्राइमरी आपका फर्स्ट डे एट स्कूल है, या आप ये बोलो कि मुझे अपने ना प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल का फर्स्ट डे बिल्कुल याद नहीं है, मुझे अपने सेकेंडरी स्कूल का फर्स्ट डे याद है, मैं वो सुना रही हूँ। फिर आप शुरू में ऐसे बोलो, I have a vague remembrance about my first I school have a because vague remembrance of my primary first day of my primary school. Okay, because I was remember too That I young. said na ma'am कि after 10th standard I got admission in 11 Nelson's higher secondary school. पर आप ना फर्स्ट डे वाला पहले बोल दो कि मुझे अपने छोटे स्कूल के फर्स्ट डे की मेमोरी नहीं है. Okay, I remember the first day of the school. That is why I am going to talk about my first day at secondary school. Okay. This I have to mention, यानी कि मुझे ये बताना है कि मैं हाँ आप फर्स्ट डे एट स्कूल बता रहे हो, पर फर्स्ट डे एट सेकेंडरी स्कूल बता रहे हो, नॉट प्राइमरी स्कूल, बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर दैट. यस मैम, आई हैव सेड कि वो रिकॉल करना तो मुश्किल है मेरे लिए. हाँ वो बोल दो, ठीक है, वो बोल दो कि बहुत पुरानी बात है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है. आई डू रिमेम्बर द फर्स्ट डे ऑफ माय सेकेंडरी स्कूल. ठीक है, ओके मैम. यस मैम. और फिर आपने बोला है डाउन टू द अर्थ. डाउन टू अर्थ होता है, द नहीं होता वहां पे. ठीक है, डाउन टू अर्थ. हाँ. यस मैम. फिर हम ना बोल देते हैं माय इंग्लिश टीचर. इंग्लिश टीचर वैसे गलत है. इंग्लिश टीचर मींस जो टीचर इंग्लैंड का है या ब्रिटिशर है. हमें बोलना चाहिए टीचर ऑफ इंग्लिश. टीचर ऑफ इंग्लिश. हाँ, आप समझ रहे हैं, मतलब जर्मन टीचर है कि टीचर ऑफ जर्मन है. जर्मन का बंदा हो गया ना, नेशनैलिटी जर्मन है वो, जर्मन. यस मैम. समझ गए. तो ऐसे टीचर हम बोल देते हैं, पर मेरे हिसाब से वो गलत है. यू शुड से टीचर ऑफ इंग्लिश. टीचर ऑफ इंग्लिश. यस मैम. बिकम आना था, बिकेम आना था. आपने Became. बोला, चेंज आना था. गेन बोला, गेन्ड आना था. ठीक है, तो ये आपकी ये सारा पास्ट टेंस में ही आना था. मैं पूरा पास्ट टेंस में पास्ट टेंस की गलतियां थी. ठीक है सना. मैम नॉर्मली बोलती हूँ तो काफी अच्छा होता है, लेकिन जब आपके सामने बोलती हूँ ना तो थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ. अंडरस्टैंड दैट. और मैंने आपका वीडियो भी ऑन करवा दिया तो उससे और थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई. बट आई टेल यू वन थिंग, अगर आप वीडियो ऑन करके बोला तो हमें पता चल रहा था कि आप अपना बोल रहे हो, और आपकी ना आंखें कहीं ऊपर थी. आपने आई कांटेक्ट देना है एग्जामिनर को. आप ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट. मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके ना हर सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर होती थी. उसके 6.5 आए, और मेरे को आके पता उसने क्या बोला था जिस दिन उसकी स्पीकिंग थी. आके बोलती है, मैम एग्जामिनर इधर उधर देख रहा था, मैंने उसकी तरफ. मैम मेरा सेम यही था. मैम मेरा सेम यही था. आई गॉट 6.5 अर्लियर, बट ये था कि सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से लाई थी. आई कांटेक्ट नहीं हिलना चाहिए. यस यस, सेम मेरे साथ हुआ. एग्जामिनर को आई कांटेक्ट दो, उसका सच में फर्क पड़ता है. Yes ma'am. I can. डर लगता है कि वो क्या सोचते होंगे, ऐसा फीलिंग आ जाती है. आपका मास्क में ढका होएगा, पर अब देखो, अब मेरी स्माइल नहीं है, पर जब मैं स्माइल करती हूँ तो आईज पे जाती है ना स्माइल. आपकी आईज, Yes ma'am. तो आईज पे स्माइल दिखनी चाहिए, मास्क से तो ढक जाना है. ओके. यस मैम. सो मैम ऐसे फ्लुएंसी वगैरह सही थी, ऐसे स्पीड और वो सब बिल्कुल सही थी. अभी नहीं करे आपने ज्यादा, बहुत अच्छा था. थोड़ा और ठहरने से बोलोगे, बिल्कुल स्ट्रेस के बिना, तो और अच्छा बोला जाएगा. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. यस, थैंक यू मैम. हरमन कौन सा? यस मैम. मैम एक्वेटिक एनिमल. हाँ जी, हरमन इज गोइंग टू स्पीक ऑन एक्वेटिक एनिमल. ओके, स्टार्ट. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. आपने अपना वीडियो ऑन करना है कि नहीं? मैम कर दे. चॉइस इज योर्स, कर लो. ओके, चलो. हाँ चलो अब बोलो. मैम सही. हाँ Ma'am, India is a diverse country, and there are many animals living in India. Many of them are pet animals, wild animals, and some of them live in oceans and rivers, known as the aquatic animals. Right now, I would like to talk about an aquatic animal, which is not a animal. Basically, it's a mammal, and it's dolphin. And according to scientists, it is the one of the most intelligent creature living on Earth, because of its we can say that training they got from the trainers. They show them very well to the public in most of the water parks and zoos. They do paid don't get nervous. Just speak. Come on. Okay, you're speaking very well.
Okay. Yes. Okay, ma'am. The male dolphins are 7 feet long, and the female dolphins are a bit longer than from them. They are 9 feet long, and they are very friendly to humans, and they never give any harm to humans. And we can see in a movie named Ajuba that I have seen last month, and I from that only I get to know more about dolphins. And there are two types of dolphins: the marine dolphin and the river dolphin. The marine dolphin basically lives in ocean, and the river dolphin lives in the river. And it is also a national aquatic animal of India, like the tiger, which is a national animal, and like peacock also a national bird. And uh, there are many programs are going on, like Project Dolphin, to save dolphins, because it is harsh reality that the dolphins are in very close to Okay. extinction. आपने 2 मिनट And पूरे बोला है हरमन. Very nice. Okay. thank you. बहुत कम गलतियां थी हरमन. Thank Very you. nice. You said one of the creature. One of the जब भी आता है इसके बाद plural होता है. One of the creatures. ठीक है? Okay. I get to know about the dolphin. I got to know about the Yes, dolphin. Ajuba. Got to know. ठीक है? फिर आप ना एक सेंटेंस में 2 आर नहीं आते. Okay. There are many programs are available. 2 आर नहीं आते. There are many programs available. यहाँ many programs are available. Okay? On the dolphin. Okay, ma'am. Okay, ma'am. बहुत अच्छा बोला. वेरी नाइस. आपको वैसे मैं एक फैक्ट बताती हूँ. जो रिवर डॉल्फिन है ना, जो इंडिया की एक्वेटिक एनिमल है, रिवर डॉल्फिन है, Yes, ma'am. ये ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी है बिकॉज इसकी आंखें यूज नहीं होती. पता है? Yes, ma'am. मैं भूल गया था ये वाला fact. इतने गंदे पानी में होती है ये वहां, तो इनको देख के नहीं, इनकी दूसरी सेंसेस ज्यादा डेवलप हो गई हैं ये वाली डॉल्फिन. Yes, ma'am. मैम ये पॉइंट मेरे को याद था पर मैं भूल गया अभी बोलते हुए. ये इसके कंफ्यूज बारे में हो एक गया था. फैक्ट है. और इनका नाम क्या है? ये आप इन्होंने मैडम का मतलब आपका ही पूरा बोला है, जो मैंने भी किया है सेम ही है, पर आपको ना एक कहाँ से जाना वो वाला बोलना है कि भाई चैनल से जाना, डिस्कवरी चैनल. उसने बताया कि मैंने अजूबा मूवी देखी, उससे पता चला. ओके मैम मैंने ओके, वैसे मतलब जो अभी लास्ट रेडी में. करा था मैंने. हाँ, मैम ये मैंने अभी हाँ. रेडी करा था जो सही से हो नहीं हाँ पाया. हाँ, मैंने यही किया है जो आपने किया है, तो ये थोड़ी अच्छा देर है. पहले से करता तो हो भी जाता, क्योंकि मैम मेरे को पता ही नहीं था टॉपिक. हाँ, ये जो रिवर डॉल्फिन है ना, वैसे तो मेरीन होती हैं, पर ये रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और ये 2011 में डिक्लेयर हुआ है एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का. मैम क्रोकोडाइल भी एक्वेटिक हो सकता है? हाँ, हाँ एक्वेटिक एनिमल हो सकता है, बहुत होता है. मैम ये वाला पॉइंट सही था कि वो एनिमल है, वो मैमल है. हाँ, एनिमल हाँ है. मैमल कैटेगरी. अब वो मैमल है, वो यंग बर्थ आप ये यंग मत को बोलो बर्थ करते हैं. एनिमल नहीं है, आप बोलो एनिमल है. इट्स अ मैमल. दैट्स इट. ओके ओके मैम. ओके मैम. अच्छा बोला हरमन. You need to be they confident. need to come to surface oftenly because they cannot birth in underwater. हाँ हाँ, वो सब बता सकते हो. बड़ा कुछ 2 मिनट बोल दिया ना उसने. सारे पॉइंट जरूरी नहीं है बोले जाए, वो तो मैंने जस्ट आपको. He spoke very well. Okay. थैंक यू. नेक्स्ट किससे बोलना है? मैम मेरा नाम फोर्थ. क्या रहा है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम मेरा ना फोर्थ क्यू कार्ड है. डिस्क्राइब. यस. कौन सा है क्यू कार्ड? डिस्क्राइब योर फेवरेट सिंगर. ओके, ठीक है. थर्ड मेरा है मैम. मैडम मुझे भी एक टॉपिक दे दो प्लीज. अब इन्हीं में से कोई बोल दो, क्योंकि अभी इनमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. बच्चे इनको ज्यादा सुनने का तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है. हाँ नक्शीब, शुरू करो. फेवरेट सिंगर. Yes, ma'am. In my life, I have listened to so many singers and all genre of songs, like traditional as well as Western songs. But here I would like to talk about one of my favorite singers. Her name is Shreya Ghoshal. She is one of the leading artists of Bollywood industry. She has many qualities and talents. She is not only singer but also a good piano player. She has won so many awards like Best Singer Awards. I love her songs. Actually, my whole family loves her as well as her songs. She comes from very middle class and conservative families. She started her career in very beginning age.
First, she learned classical music, and then she participated in a very famous reality show named Saregamapa in 1989. She also works as a charity worker in so many NGOs. However, listening to her live was such a unique experience. When she came to my hometown, I went to go for listening her songs. Last but not the least, I would definitely love to attend another of her concerts. Okay, you spoken 1 minute 15 seconds. Okay. Yes, ma'am. अच्छा बोला है, आपकी प्रोनाउंसिएशन है 2-3 जगह पे. एक तो आपको ना ऐसे नहीं बोलना बिगिनिंग एज में उसने स्टार्ट किया, वेरी यंग एज बोलो. बिगिनिंग एज क्या होती है? Say very like 10 or 11 years old. Young age na, she started at a very young age. Okay, she was only 10 when she started learning. फिर आपने बोला पियानो. पियानो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, और ये प्रोनाउंसिएशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. 1 मिनट. ओके ओके मैम. हाँ, एक मिनट. ये एक तो ये वर्ड है WON. बहुत बच्चे इसको वॉन बोलते हैं. वॉन नहीं है ये. Okay? हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो आप अच्छे से. सुन रही है? One. Yes, ma'am. One, not one. Okay, it's one. और दूसरी ये देखो, अभी आपने बोला पियानो. Piano. पियानो, not Piano. टाइप की चोरी नहीं है. Piano. पियानो. Okay. पियानो. Violin. Violin की pronunciation. Violin. Okay. Violin होगी. Violin. Okay. Okay. ठीक है. नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट क्या है? यस मैम, मेरा है जुबैर. Zubair. जुबैर मैम. जुबैर. कौन सा क्यू कार्ड बोल रहे हो? Describe a time when you made a promise to someone. Okay. Do you want to have your video on? Ma'am, Actually, I cannot. Okay. Because I have some problems in my laptop. Okay, no problem. Okay. Hello. हाँ. Many people. Okay. बोलो. Many people are pretty casual about making promise, and it really irritates me when people make promise and they are not fulfill it. I don't make promise easily, but if I do, I try my best to fulfill them. Last year, during the coronavirus lockdown, my parents made me promise that I would not leave the house without work until the vaccine is released. My grandparents live with us, and they lie in the high risk category because of their age. Moreover, my grandmother is the patient of diabetes, so all of us were really worried about my grandparents catching this virus. I am very social person, and before the corona days, I used to spend at least 2 and 3 hours with my friends. With my friends every day. I also spend a lot of time with my grandparents. In fact, sometimes I sleep on the couch in their room. My parents were worried about that I might catch this virus if I spend too much time outside. So it was very hard for me in the beginning. I felt so bored as I could not meet my friends. In fact, in the first few days, the only time I left house was very get groceries. I was in contact with my friends on phone. We used to talk. We used to pass time by talking. 2 minutes हो गए जुबैर. 2 minutes Yes, हो गए. ma'am.
Okay, so we have more than 40 other students here जो मेरे साथ एग्जामिनर का काम कर रहे हैं. आप एक तो जुबेरा आप पीपल की प्रोनाउंसिएशन कई जगह ठीक करी है पर कई जगह गलत भी निकली है मुंह से फिर दोबारा. ठीक है. मेकिंग प्रॉमिस नहीं, मेकिंग प्रोमिसेस. पीपल आर वेरी एक आपने प्रोनाउंसिएशन करी है वर्ड की ग्रोसरी. ग्रोसरी की करी नहीं है करेक्ट. ठीक है. तो ओनली टाइम आई हैड टू लीव माय हाउस वाज टू गेट सम ग्रोसरी. ओके. दालें चावल खरीदना उसको ग्रोसरी कहते हैं. ठीक है. और बताओ बाकी एग्जामिनर्स. ग्रैंडपेरेंट्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं होता. प्रोनाउंसिएशन की प्रोनाउंसिएशन ठीक करो पहले. ठीक है. और मैम ये आपने लिखा है वही सेम है. हाँ कोई बात नहीं. लाइन टू लाइन. हाँ कोई बात नहीं. अगर उसने याद करके अपना लिखे बोला है और वहां पे ऐसा बोल पाएगा तो अच्छा बोल दिया. ठीक है. देखो मेरी बात सुनो. एक दिन पे सबका एग्जाम नहीं होने वाला. ठीक है. एक क्यू कार्ड सबको नहीं आने वाला. सही बात. यस मैम. एक एग्जामिनर आपने सबने फेस नहीं करना. तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करो कि सेम हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा भी चेंज कर लोगे और अच्छे से बोल पाओगे तो अच्छे बैंड आ जाएंगे. बच्चे पता है क्या सोचते हैं आपका सेम बोला इसलिए कम बैंड आए. इसलिए नहीं कम बैंड आते. अभी आप देखो सेम भी बोलते हो तो कितनी गलतियां कर देते हो कई बार. यस मैम. अगर आप सेम बोल दोगे आपकी गलती नहीं होगी तो डेफिनेटली बैंड आएंगे. हो ही नहीं सकता नहीं आए. ठीक है. तो यू हैव टू. हाँ मैम थोड़ा बहुत फीडबैक तो दे दीजिए कैसा रहा. मतलब इट वाज नाइस. ऑन द होल अच्छा था. व्हेन यू मेड अ प्रॉमिस टू समवन तो आपने वो प्रॉमिस निभाया. आपने बड़ा अच्छा बोला है और ओनली टाइम यू वेंट आउट वाज दैट. मेरे को तो ठीक लगा है. अच्छा लगा है. 2-4 गलतियां जो मेन मैंने पकड़ी हैं आपकी वो मैंने आपको बता दी. आपकी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना है जुबेर. इट्स वेरी ओके. तो आप ना अपने किसी नोटबुक में 1 या 2 पेजेस ऐसे रख लो और जैसे वर्ड लिखते हो ग्रोसरी लिखते हो. ग्रोसरी को ना आप गुजरात से हो? नहीं मैम यूपी से. आप ग्रोसरी को फिर साथ में हिंदी में लिखो. हिंदी में उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख लो उस वर्ड के आगे. जैसे पीपल लिखते हो. मैं बच्चों को पीपल पता है कैसे कराती हूँ. पीपल का पेड़ पीपल है. ओ की आवाज ही नहीं है. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना when two vowels go walking. Yes, people. The first one does the talking. वही वाला. ठीक है. अच्छा चलो. मैम मुझे भी थोड़ा वो फीडबैक भी बोल सकते हैं ना मैडम इसमें. किस पे? झूठ मतलब जैसे कोई भी क्यू कार्ड है. जरूरी नहीं है कि मतलब कोई लाइफ एक्सपीरियंस पे ही बोले कि समय. अरे लाइफ एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं सारा. ये सबसे बड़ी कहानियां बनानी सिखाते हैं. हर जगह झूठ नहीं बोल सकते बट यहाँ पॉसिबल है. आप यहाँ कुछ भी बोलो बट आपको बोलो. बट मैम अगर ऐसा बोलो कि अगला जज ना कर पाए कि ये झूठ है. पॉलिटिशियंस जैसे. वो तो सच है मैम. वो तो झूठ ऐसा बोलते हैं कि लोग सच भी नहीं बोल सकते ऐसा. इतना कॉन्फिडेंस है. नंबर्स ऑफ रीजन मतलब एस कहाँ लगता है. नंबर ऑफ रीजंस में लगता है या नंबर्स ऑफ रीजन में लगता है. नंबर ऑफ रीजन. वैसे लॉट्स ऑफ रीजन में भी लॉट्स ऑफ रीजंस पे लगता है. लॉट ऑफ रीजन होगा ना मैम. लॉट ऑफ रीजन. वो लॉट ऑफ का फंडा डिफरेंट है. वो होता है अ लॉट ऑफ रीजंस या लॉट्स ऑफ रीजंस. ठीक है. दोनों में ऐसा लगेगा फिर मैम. दोनों में लगे. लॉट्स पे भी नहीं. अ लॉट ऑफ पे नहीं लग रहा ना. लॉट्स ऑफ नहीं. ए पे नहीं लगने का. सिंगुलर हो जाएगा ना वो. हाँ ए पे नहीं लगने का ना. हाँ मैम मुझे भी थोड़ा फीडबैक दे दो. नक्शी बोल रही. नक्शी आपका तो अच्छा था. आपको दे दिया. आपकी प्रोनाउंसिएशन वॉन की पियानो की गलत थी. बिगिनिंग एज नहीं बोलना. आपने एक जगह बैठ बोला था वो आपकी गलतियां थी. बाकी आपने अच्छा बोला. मैम अगर ऐसे बोल आएंगे एग्जाम में तो एटलीस्ट 6+ तो हो सकता है. 6 तो हो सकता है. बिल्कुल आराम से 6.5 वाला था जुबेर. पर आपकी प्रोनाउंसिएशन देखो ये बहुत सब्जेक्टिव है. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मार्किंग जो राइटिंग और स्पीकिंग की है. एक एग्जामिनर को आपकी ज्यादा गलतियां पकड़ी गई. एक ने कम पकड़ी. जो भी है. मेरा एक स्टूडेंट बोल रहा था मैम मैं ना बहुत आई कांटेक्ट. एग्जामिनर बहुत ओल्ड थी उसकी और वो कह रहा था कि मैम वो बार बार ऐसे सो रही थी. कहता है मैं मेज पे ऐसे हाथ मार के उसको उठाता था. उसके ना वो बहुत गलतियां करता था पर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया. एग्जामिनर तो सो
उसके 7 ब्रांच। और तरह की तो ये भी लक है मैम। और एक और एग्जाम स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, कहता है मैं बाहर खड़ा था अपनी टर्न की वेट कर रहा था, कहता है कोई आया उसने मुझे बोला है योर टर्न नेक्स्ट, तो कहता है मुझे लगा पीएन है, वो मुझे ले गया अंदर और अंदर जाके सामने कुर्सी पे बैठ गया, एग्जामिनर था। तो कहता है मेरे को तो मैंने तो उसको ढंग से विश भी नहीं करा, पहले उसके साथ पूरा कॉरिडोर वॉक करके गया मैं रूम तक। कहता फिर मैंने एकदम रियलाइज ओ माय गॉड ये तो एग्जामिनर है। तो फिर मैम मैंने ना जर्मन का एग्जाम भी दिया है मैम 2017 में। हाँ जर्मन A1 A2 का। तो मैम मुझे ऐसा लगा जब हम एक लड़का और एक लड़की, हम एक मैं था और एक लड़की थी, दिल्ली से थी मैम वो। तो हम इसमें आइल्स का एग्जाम जैसा नहीं होता, 1 by 1 करके नहीं करते, वो ग्रुप में बात कराते हैं, मतलब आपको पेपर दे देंगे, आप आपस में बात करो। तो मैं जो जर्मन बंदा था उसने तो एक वर्ड नहीं बोला, और वो तो ऐसा लग रहा था मुझे सो रहा था। और आई थिंक नाम ध्यान नहीं है, गोथ इंस्टीट्यूट में दिया था मैंने चंडीगढ़ में। तो जितने भी क्वेश्चंस मालूम किए हमसे वो इंडियन थे, वो उन्होंने ही मालूम किया, और जर्मन बंदा मुझे ऐसा लग रहा सो रहा था वो। मैंने क्या बताओ यार। मैंने कभी आईएलटीएस में भी तो हो सकता है ना कि इंडियन बंदा भी तो ले सकता है ना। इंडियन ही होते हैं, इंडियन ही लेते हैं। 90% इंडियंस है, 90% इंडियंस है। अच्छा तो चलो ठीक है। हेलो ओके हेलो मैम। हाँ हेलो हेलो, मैं सबको एक बार म्यूट कर रही हूँ, फिर अब बात करो। हाँ अब बोलो किसने बोलना है। मैम मुझे बोलना है मनदीप। मैम नेक्स्ट क्यू कार्ड मेरा है मैम। हाँ बलजीत, चलो बलजीत पहले आप बोलो। हाँ फिर मैम थर्ड मेरे सबका बुलवाती हूँ, अभी बलजीत, फिर मनदीप, फिर सुधा, फिर कोई और। ठीक है चलो अभी अपने आप को म्यूट करो। चलो बलजीत शुरू हो जाओ। Okay, ma'am. Although there are various forms of arts like dancing, singing, and so on, but the first word which come in my mind when I think about the art is painting. Honestly, I am not a good painter. I'm not a good painter, but one of my friend is painting lover, so I have to sometimes I have to go with him to see the exhibitions of paintings. But I really feel very bored because this is not my cup of tea. So last week when I visited an art exhibition, was opposite to my expectations. It was organized near my city center, and it was based on the combination of science and art. And when I went there, I was really surprised to see that the people there were enjoying, and they were very exciting. The one thing that I really feel very attracted was a big dinosaur that was created with the help of some steel like aluminium. It looks like so natural because of the paintings done on it. There were some paintings of the famous artists, as well as there are some 2 minutes हो गए, 2 minutes हो गए। वेरी नाइस, 2 मिनट आपने बोल दिया। छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर्स काफी ज्यादा है आपकी, बट यू कैन वर्क ऑन देम। the first thing which come to my mind, क्या होना चाहिए which comes to my mind? one of my के बाद हमेशा plural, one of my friend बोला है, फिर आपने बोला one of my friends होता है, उसके बाद आपने बोला is painting lover, loves paintings, loves you know this. Okay, people were exciting, ये आपकी major grammatical error। किसी की फीलिंग बतानी है तो आपने बतानी है ईडी फॉर्म से। तो people exciting थे का मतलब है लोग ऐसे थे जो जिनको देख के आपको एक्साइटमेंट हो रही थी। लोग एक्साइटिंग नहीं थे, लोग एक्साइटेड थे। people were excited, you were excited। किसी की फीलिंग देनी है तो ईडी फॉर्म है, और किसी चीज की क्वालिटी देनी है तो आईएनजी फॉर्म है। ठीक है ओके हाँ ये ध्यान रखना, फीलिंग तो ईडी फॉर्म, क्वालिटी आईएनजी फॉर्म। ठीक है। इट लुक्स लाइक सो नेचुरल, इट लुक्ड सो नेचुरल, पास्ट टेंस में जाओ ना।
Okay, ma'am. It looked so natural that, you know, we were really awed, AWED, awed to see it. Okay, Haran, or to look at something in awe means to look at something in great surprise and, you know, कि जैसे क्या कुछ अच्छा देख रहे हो, चंभे वाली चीज देख रहे हो, ठीक है? Like that. So on the मैम whole, काफी अच्छे Baljeet, it was good, but आपकी ना ये mistakes काफी हैं grammatical, इन पे आपको work करना है, but definitely 6 से कम का नहीं है with the mistakes. Okay? मैम मेरा कितने के आसपास था? हरमन Yes, आपका वो 6.5 के आसपास था, आपकी गलतियां जो मैंने बता दी थी, ये हाँ जी सब्जेक्टिव मैम। मार्किंग होती है, you know, सब्जेक्टिव होती है। मैं आपको ना डर डर के बैंड दे रही हूँ यहाँ पे कि आपकी ये ना होए। मेरे को कई बच्चे आके कहते हैं मैम सेंटर में हमें 7 दे, किसी और सेंटर में, हमारे में तो हमें ऐसे ज्यादा नहीं देते हैं, पर जितना मैं सब्जेक्टिव के हिसाब से कि सेंटर में 7 दे रहे थे, एग्जाम में 5.5 आए, ऐसे हमारे साथ नहीं होता। हम अगर 6 देते हैं तो एग्जाम में 6.5 आ सकते हैं, 5.5 नहीं आएंगे। ओके, तो ओके मैम। हाँ मैम जब बोलती एक हूँ और डाउट हाथ था। पैर मैम बहुत ज्यादा मैम कांपने लग जाते हैं मैम, बहुत ही मतलब नर्वसनेस बहुत हो जाती है। हाँ, नर्वसनेस, मैम बल्कि आई कुड सी दैट इन योर वॉइस। आप नर्वस नहीं हो, आप वर्क करो अपनी गलतियों पे, नोट। मैम एक और डाउट था मैम, जैसे मैम वहाँ पे 2 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो खुद एग्जामिनर रोकेंगे कि हमें रुकना पड़ेगा खुद ही? 90% ऑफ द टाइम आपको एग्जामिनर ने 2 मिनट से पहले रोक लेना। ओके, ओके मैम। वहाँ वो ओके क्या मैम। होता है कि जो नीचे वाले क्यूज दिए होते हैं ना, अगर एग्जामिनर को आपने वो आंसर कर दिए इन द 40 मिनट्स, 40 सेकंड्स पहले, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, फिर एग्जामिनर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, उसने जज कर लिया आपको, तो 1.5 मिनट पे, 1.25 मिनट पे आपको रोक देंगे। ठीक है? ओके मैम। अगर आपने लास्ट क्यू अभी नहीं बोला ना, कई एग्जामिनर्स पे मेरे को स्टूडेंट्स आके बताते हैं मैम ऐसे इशारा कर रहे होते हैं कि ये वाला भी बोल दो, ताकि हाँ हम जी मैम। आपको बंद कराए फिर। ठीक है, हाँ जी। तो आप मेरी सजेशन है कि सारे क्यूज को पहले आंसर करके एक्सपेंशन लास्ट में करो, सो दैट the examiner will stop you, and then you won't have to speak too long, and the chances of mistakes will also become less. ओके मैम। मैम मेरा ना 6:30 वाला था क्या नक्शी? Nakshi, definitely your confidence and all, if I say the cumulative this thing, it should go 6.5 plus. ठीक है? तो ओके मैम, थैंक यू। अभी ना मैडम अगले आपके बच्चे, पास कोई रिवीजन क्यू कार्ड्स हैं? हाँ, सारे मेरी फाइल में। अच्छा, नेक्स्ट जो भी बच्चे होंगे ना, अगर बैंड पूछना है उसी टाइम पूछना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मेरी मेमोरी का। ओके मैम सबको बताया, मुझे भी बता दो सना शेख को। अब नहीं बता सकती। नहीं मैम मेरा बता Okay, दीजिए, मुझे मैम। सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा मैम। जुबेर, आपके वो प्रोनाउंसिएशन की गलतियां बहुत थी। जुबेर पूछ रहा है ना? यस मैम, तो 6 तो हो ही जाएगा ना। प्रोनाउंसिएशन 6 है। मैम मैं सिर्फ मैं बाकी रह गई हूँ सना शेख, मुझे भी मैं भी बता दो मैम। प्लीज। इट्स लाइक 6 to 6.5 के बीच में। ठीक है? ओके मैम। आपको याद है क्योंकि आपने वीडियो ऑन रखा हुआ था, तो उससे मेरी memory मैम कैन आई स्टार्ट नाउ? yes परमिंदर। हाँ, परमिंदर start. Okay, my topic is favorite singer. हाँ. Although I love to listen music of many singers, but here I would like to talk about my favorite singer. Her name is Sunidhi Chauhan. She belongs to a Bollywood industry, and she has started her singing career in a very early age of her life. I can vividly remember that she had participated in one of the singing talented show where she won the first prize, and soon after that she got an opportunity to sing the song of a movie. She has sung all the song of that movie. I can recall the name of the movie, but the actress was Urmila Matodkar. And after that she became so much successful and famous that she got out of opportunities not only in the Hindi movies but also in different languages. I was surprised to hear the song she sang in a Tamil language, and I can't believe myself that she sung that song in so nicely that no one can even judge that she belongs to a Hindu family. I was so much motivated from her singing that I can recall that I also started taking classes singing. Soon my family members and neighbors has told me, please stop your singing. You can't be a next Sunidhi Chauhan. So I dropped my idea, and because they were very fed of my bad singing.
But she's still one of my favorite singer, and she also has sung many Punjabi songs, and no one can even only by hearing her, no one can even say that she doesn't know Punjabi very much. So she's very much talented, and she is also multi-talented because she knows very dancing forms. Whenever she comes on the TV screen, she always 2 minutes हो गए Parminder. Okay. Parminder, I could find a lot of grammatical errors. She had participated. She participated. Okay, all the songs. She sung. She sang. No one can judge. No one could judge. Has told me. Told me. Has आना ही नहीं था. One of my favorite singer. One of my favorite singers. One of my favorite. अभी मैं इतने नोट कर रहे हैं. थोड़े से मेरे से नोट नहीं भी हुए because of ये बिल्कुल आपको इन पे वर्क करना है. आप थोड़ा ना आप जहाँ पे भी आपने वो सेंटेंस को थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करिए. नॉट ओनली दिस बट वहां पे आपकी ग्रामर ज्यादा. तो आपको मैं ये सजेशन दूंगी, आप बिल्कुल सिंपल छोटे सेंटेंस बोलना. इस ऐसा बोल के 6 रह जाएंगे. सिंपल छोटे बोल के 7 पे आ सकते हैं. करेक्ट. ग्रामेटिकल एरर्स कम निकलनी चाहिए. ओके. जितना सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना, उतनी आपकी ग्रामर ज्यादा मतलब खराब हो जाएगी. ठीक है. तो जितना सेंटेंस और द वे यू स्पीक, इवन इफ यू स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस, द वे यू स्पीक विल बी वेरी इफेक्टिव. बिकॉज आप में ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइस सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव क्वालिटी इन यू. ओके. You don't, yes, that's very important. Pronunciation is good. Pronunciation problem नहीं है आपको. Okay. मैम सपोज हम अच्छा बोलते और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है तो भी पॉइंट्स गिर जाते हैं. देखो बहुत बिल्कुल आपने करेक्ट बोला है. आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी मैंने 8 भी आते देखे हैं. अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो थोड़ा नर्वसनेस है. मेरे को एक स्टूडेंट ने आके बोला, मैम आई वाज सो नर्वस, माय वॉइस वाज शेकिंग, बट शी गॉट एन 8. ओके. यस मैम. नहीं है बिकॉज वो नर्वसनेस में आके आप और गलत बोलते हो ना, वो नर्वसनेस बुरी है. ठीक है. यस मैम. कॉन्फिडेंस तो था इसमें, परमिंदर में है कॉन्फिडेंस. सना में अच्छा बोला है इन बच्चों ने. पर ये है कि आपको बस ये ग्रामर पे वर्क करना है, और ये वर्क करने के लिए आपको लिख के गलतियां करनी है. ये वाली वन ऑफ माई के बाद मुझे प्लूरल लगाना है. राइटिंग में भी यही गलतियां आपकी. ओके. ये आप. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. ये no one can judge, no one could judge. She sang so beautifully that no one could judge that she is not a Tamilian. तमिल सॉन्ग गाया था उसने. हाँ. तो आपने हिंदू फैमिली गाया होगा, बट मैंने तो ऐसे ही बोल. हाँ. फैमिली बोल. हाँ. See, one of my favorite singers. ठीक है. Has told me क्यों लगाया? उन्होंने आपको बताया था. Told me. ठीक है. Yes. बस थोड़ा आप आराम से बोलोगे ना, थोड़े छोटे सेंटेंस बनाओगे तो गलतियां कम हो जाएंगी. ठीक है. ओके. ठीक है मैम. थैंक यू. मैम मन शर्मा. पहले मनदीप. ओके. फिर आपका नेक्स्ट नमन. ओके. नेक्स्ट मेरा है. किसका है? सुख का. फिर नमन का. चलो बलजीत. मनदीप. मैम मेरा भी. हाँ सबका बुलवाएंगे ना. मैम मेरा शॉर्ट ट्रिप वाला है. चलो ठीक है. मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ. मनदीप अपने आप को अनम्यूट कर लेना. चलो स्टार्ट करो. Well, I live in countryside, but I have joined a weekend computer course at Amritsar. I have enrolled for this course at a very prestigious institute, as it will help me to get a good certificate or eventually a job. But today I am going to talk about this short test, which I do not like to make because of various reasons. First of all, I have to wake up early in the morning at 5:30 and start by 6:30 from my home. Sometimes I wake up too late because I do not like getting up early in the morning. Secondly, the transportation system in my hometown isn't very good, so that's why I have to walk at least 40 minutes from my home to reach the main road. From where I can use public transportation to reach my destination.
then there is a lot of traffic congestion in the urban area, and to make matters worse, there are a lot of flyovers that are under construction. So sometimes when I wake up too late, then I force to use my own vehicle. I normally can drive on roads very easily, but when I stuck in traffic jam, then I face a lot of difficulties. So because of all these reasons, I mostly miss my first half an hour or at least 15 to 20 minutes of my classes. Another thing that I dislike about this journey is that there are sometimes the ideal engines at the traffic lights also create a lot of noise, and the emissions from the engine spoil my morning pace. And another thing that I do not like that while people aware that traffic isn't moving, they start honking. When I hear the loud horns, I start having a headache and feel irritated. My course will finish in March, and I am waiting for the day I sit for my exam. It will be such a big relief as I will not have to make this journey every weekend again. So this is the shortcut. Okay, okay. हो गया 2 मिनट. Mandeep, you spoken very nice. Okay. हाँ, बहुत अच्छा बोला. To make matters worse बोला था. When I'm stuck in the jam, when I am stuck in the jam. ठीक है, वहाँ पे am आता है. और मुझे तो कोई गलती मिली नहीं, किसी और को मिली है कोई गलती? Anybody else? No, ma'am. बहुत अच्छा, No, ma'am. बहुत अच्छा बोला है मनदीप. If I were the examiner, और अगर आप ऐसा बोलोगे तो मेरे को मैं 7 आराम से दे दूंगी. Okay? Good. Yeah, good, good. Next, Sukh. मैम उसके बाद नेक्स्ट मेरा अर्जुमन. मैम मीनू का भी. नमन है इसके बाद, फिर अर्जुमन है. ओके, चलो. हाँ, सुख, चलो. Yes, ma'am. Start. Yes, ma'am. कौन सा है? Ma'am, describe a bag you want one. हाँ, चलो. 1 to 1, ठीक है, चलो. Yes, ma'am. Well, I love bags, and I have different kinds of bag like shoulder bag, handbag, sling bag, backpacks, and so on. But here I would like to talk about one such bag which I want to buy, and that is a backpack. I want to buy a black waterproof backpack, and I want to buy it from a good brand like Adidas, Nike, and Reebok, because these types of brands are very durable as well as very long lasting and very stylish. I purchased a bag 2 months ago, which was broken, and the quality of that bag is very bad. So that's why I want to buy this type of bag. Apart from this, I can carry my some things like books, laptop, and gym clothes. And apart from this, there are some reasons why I want to this type of backpack, because these type of backpacks which allows me to hands free, and they don't put much strain on our body, and I can easily carry other things in my hands. And the cost of this bags around 3,000 to 4,000, but I want to buy on this on a sale, because near any occasions like Diwali or Holi, these brands discounts give some discounts on like 50 or 40% discount on bags. There is a mall near my house where I can purchase this type of bags, and I love the backpacks because it allows it have many benefits, and because we not carry on our shoulders, and they put okay. 2 minutes हो गए. Okay, what feedback I'm going to give? किसने बोला अभी? सुख. जो मैं इसको feedback दे रही हूँ ना, वो मैं बहुत बच्चों को देती हूँ ये feedback. तो बहुत बच्चे जिनको आज बोलने का मौका नहीं मिल रहा, वो चीज नोट करेंगे. जब आप बोलते हो ना, जब आप लास्ट वर्ड बोलते हो किसी भी सेंटेंस का, और उसके बाद आप उसको ड्रैग करते हो, तो वो बहुत नेगेटिव जाता है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे. जैसे बैग, क्लोथ्स, पैक, हैंड्स, हाउस. समझ गए ये मेरी बात? बेनिफिट्स, बिकॉज. ठीक है,
अब आप इसको जब वीडियो की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप ये नोट करना, ये जो मैंने बात करी है इसको एंड में, एंड वाले वर्ड को ड्रैग नहीं करना। सुख 2 सेंटेंस को ही बोलो दोबारा। Okay. 2-3 सेंटेंस बोलो। Okay. Well, I love bags, and I have many different kinds of bags, such as shoulder bag, handbag, sling bag, backpack, and so on. But here I would like to talk about one such bag which I want to buy, and that is a backpack. हाँ, I purchased. बैकपैक। अब देखो, अभी आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, अभी आपने बहुत अच्छा बोला है। एंड दिस स्मॉल फीडबैक हैज ब्रॉट अ वेरी बिग चेंज इन योर स्पीकिंग। सो जस्ट एक फीडबैक, और आपको एक मिनट में आपने उसको कैच करा है। हाँ, इट्स वेरी गुड, इट्स सो गुड। आप देखो, आपको आज मैंने ये बात बताई है ना, आपका इस एक करेक्शन से एक बैंड ऊपर जाएगी स्पीकिंग। Yes, ma'am. हर सेंटेंस पे आपने ड्रैग करे वर्ड। ओके, समझ गए? अभी आपने 3 सेंटेंस बोले, एक में भी ड्रैग नहीं करा। ओके मैम। आप हो गए थे थोड़ा कॉन्शियस, एंड वाले वर्ड को ठीक से बोलना है। Yes, ma'am, definitely, ma'am. Definitely. So, and many students do like this. Many students. That is why मैं ये बोलती है, क्यों ड्रैग करते हो भाई, लास्ट वाला वर्ड क्यों बोलते हो उसको? ठीक है? I am going there. नेचुरल मैम हो के भी नोट नहीं किया ना मैम ऐसा। हाँ, अभी नोट नहीं ना करा, तो ये अभी देखो कोई बताता है तो आपको ये चीजें फिर नोट हो जाती हैं कि अच्छा ये चीज है। पर फॉर्चुनेटली अभी पहले जितने बच्चों ने बोला है, किसी ने ड्रैगिंग नहीं करी थी। Nobody had done it. ठीक है? तो आपने करी तो मुझे याद आ गया, ओ ये तो बड़े बच्चे करते हैं। जब मैं ऑफलाइन कराती हूँ तो बड़े बच्चे करते हैं ये गलती, बहुत करते हैं। मैं क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चों को ये कर ड्रैगिंग। ओके, नेक्स्ट किसकी टर्न है? मैम मेरी। मैम मेरी। ओवरऑल मैम, ओवरऑल उसकी वजह से मैं ड्रैगिंग थी हर सेंटेंस में। अभी तो 5.5 है। ओके, बट बहुत अच्छा अदरवाइज था सारा। अभी जो बाद में आपने बोला वो 6.5 है। ओके, चलो। नमन। नमन, हाँ जी, नमन क्यू कार्ड कौन सा है? मैम वियर क्लॉथ्स, अनयूजुअल क्लॉथिंग। ओके, ठीक है, चलो। ओके, टुडे आई वुड like to talk about a person who wear unusual cloth. Most people used to wear formal clothes and casual clothes that suit their personalities. But I saw some people who wore abnormal clothes. I think about abnormal clothing. These is only one person I can think of my friend. She's my best. She's my friend. Her name is Ritika. I find her clothing preferences unusual because she does not follow the clothing rules. For example, once I saw her a dress with unusual clothing combination like neon green with a black color. And then another time I saw him wearing a traditional dress with also wear a denim jacket. So she just wear whatever she feel like wear. Actually, she want to be a fashion designer after her graduation. She like to try different clothing combinations like any traditional dress with broad earrings and very look makeup, and so that she does that trial. She does that trial with on clothing and also trial with family members clothing. For example, recently she made a denim jacket with full of cutting and create a rugged denim jacket. I have heard people talking about his odd fashion choices, but she is proud of his clothing choices. In fact, is that she is very good looking and well maintained figure. So whatever she wear clothes, she is looking very good. Okay. आपने बोला who wear. Here I am going to talk about a person who wears. Who के बाद wears. Okay, a person है ना, singular, तो ऐसा है। तो people used to wear formal clothes or casual clothes. People used to wear. अब नहीं people पहनते हैं clothes. People wear. अभी मैंने बताया था used to का मतलब है अब नहीं. Okay मैम. Okay, used to wear is wrong. Just wear बोलो, used to नहीं बोलना वहाँ पे. ठीक है? Okay मैम. Used to पहले स्टूडेंट के टाइम मैंने ये वाली आज गलती बताई थी.
एबनॉर्मल वर्ड मत यूज करो, अनयूजुअल बोलो. ओके, ओके मैम. एबनॉर्मल थोड़ी होते हैं कोई भी कपड़े, नॉर्मल ही है जो भी पहनता है कोई. शी ओके कैरीज मैम. हरसेल्फ वेल इन दैट. आप बोलो आपकी ना एक गलती है जो बहुत रेपिटेटिव है और उस एक गलती पे आपने वर्क करना है, अदरवाइज ये बहुत बुरी तरह पेनलाइज होती है इन द आइल्स स्पीकिंग. यस मैम, प्रीवियस टाइम मेरा 6 आया था. हाँ थर्ड, हाँ बस ये एक गलती चली गई तो 7 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे, मार्क माई वर्ड्स. यस मैम. पर ये 10 जगह आ चुकी है आपकी आज. ओके आपने मैम. बोला शी वेयर, शी वेयर्स, शी फील लाइक, शी फील्स लाइक, शी वांट टू बी, शी वांट्स टू बी, शी लाइक्स टू हैव, शी लाइक टू हैव, शी लाइक्स टू हैव. सब में ऐसा आना था. ही शी इट के बाद वर्ब में ऐसा आता है. और ये रेपिटेटिव गलती होती है, रेपिटेटिव. एक क्यू कार्ड 2 मिनट का बोलते हो 20 जगह हो जाती है गलती. ओके मैम. तो ये मतलब जहां जहां पर सब्जेक्ट के बाद में एस आना चाहिए वहां लगेगा, लगाना ही है मुझे. वहां देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद हमेशा ऐसा आता है. ओके मैम. Here I am going to talk about a person who wear. ये आपकी फर्स्ट लाइन में who wears. ठीक ओके. है. फिर आपने बोला she wears, she feel like, she feels like, she want to be, she wants to be, she like to have, she likes to have. तो बाकी तो मैं नोट ही नहीं कर पाई. फिर आपने कई जगह आपने अपनी फ्रेंड को हिम कर दिया. ओके मैम, वो हो सकता है मैम. हाँ रोना है. ठीक है. तो ये ओके. पर वो इतना नहीं है, पर जो एस वाली गलती है ना ये बहुत मतलब नेगेटिवली मार्क होती है. इम्पैक्ट करेगा. मैंने एक्चुअली पर्सनली एक्सपीरियंस करा. जिन बच्चों की ये गलती होती है ना वो एग्जाम में अच्छा बैंड स्कोर नहीं ला पाते हैं और Yes, वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं. ओके, पर ये गलती बहुत कॉमन तो है. अभी आपने क्या बताया, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. अच्छा. हाँ, अनकाउंटेबल के साथ भी ऐसा लगता है कि चीज काउंट नहीं कर सकते. नॉलेज इज पावर. नॉलेज काउंट नहीं ना कर सकते. शुगर इज स्वीट, शुगर काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. बैगेज इज हैवी, बैगेज काउंट नहीं कर सकते. पर बट सूटकेसेस आर हैवी, उनको काउंट कर सकते हो. ठीक है. तो जो अनकाउंटेबल है उसके साथ भी एस है. थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, इनके साथ भी एस है वर्ब में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. You have Okay, to ma'am. work on this mistake. Ma'am, he, overall, she, इनका ओन का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग था. Own हाँ, एंड own, okay. उनका had heard, मतलब I had heard about her, उसकी जगह I has heard about her ऐसा. नहीं, I has we had दोनों ही नहीं आने. I heard ही आना है सिंपल. हाँ. डायरेक्ट मैम Heard. पास्ट प्रेजेंट आएगा मैम. हाँ डायरेक्ट पास्ट या प्रेजेंट आएगा. सिंपल पास्ट या प्रेजेंट. ठीक है. ओके ओके मैम. मैम ओवरऑल ओवरऑल आज का आपने इतनी गलतियां कर दी ना. आज मैं बैन क्या दूं फिर आपने कहना है मेरे को डिप्रेशन में हो गई. मैम नहीं मैम, इम्प्रूवमेंट करना है ना इसलिए. 5.5 to 6 है सब्जेक्ट. ओके मैम, थैंक यू. हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है. ये इसका आपने वर्क करना है. मैम ध्यान रखूंगा इस चीज का नेक्स्ट टाइम. मैडम कई बार जो क्यू कार्ड में टॉपिक्स आते हैं वो कई बार जल्दी खत्म हो जाते हैं, सारा कुछ आंसर हो जाता है 1.5 मिनट में. तो फिर मैम फिर आगे मिलता ही नहीं है कुछ बोलने के लिए. तो मैडम फिर वहां पे चुप कर जाएं कि फिर भी बोली जाए कुछ भी बना के ऐसे? देखो आप मेरे को कोई एग्जांपल दो. जैसे आपने एक्वेटिक एनिमल पे बोल दिया, आपके पास और कुछ नहीं है बोलने का, आप चुप हो जाओगे, है ना. फिर आप बोलो मैं एक बार एक जू में गया था. एक जू का बना दो. वहां मैंने डॉल्फिन शो देखा. ठीक है. और वो शो मुझे बड़ा अच्छा लगा. I was so surprised. Dolphins were, responding to all the commands given by the trainers, and it was very enjoyable. They were flying in the air also. Like dolphin काफी ऊंची छलांग भी लगा लेती है ना dolphin. And the dolphin फिर कुछ भी देखो. आपको ना ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है कि आपको हर क्यू कार्ड 2 मिनट प्लस जाना है अपने आप बोल के शीशे के सामने बैठ के. ठीक है मैम. मेरी यही प्रॉब्लम है मैडम, मेरा लंबा नहीं खींचता मेरा मैम. लंबा खींचने की आपको प्रैक्टिस. देखो आपने कोई जैसे आपने बोला आर्ट एग्जीबिशन बोल रहे हो या कोई पेंटिंग बोल रहे हो, पेंटिंग खत्म हो गई, फिर वो बोल दो कि मैं ऐसे पेंटिंग शो में गई थी, वहाँ मेरी फ्रेंड साथ में थी. शो के बाद हमने we had burgers, there was a Domino's outlet over there, so we had. मतलब इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना. कुछ भी बोलोगे तो नेगेटिव नहीं होती, बोलोगे नहीं तो नेगेटिव होती है. ठीक है मैम. मैं सोच रही थी ऐसा भी होता है क्या? एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया ना, मैं पहले ये सोचती थी कि सिर्फ उसी के ऊपर ही बोलना है कि उसका आपका पूरा हो गया ना. आपका क्वेरी ये है कि मैंने उसके बारे में पूरा बोल दिया, सारे क्यूज आंसर कर दिए, अब मेरे पास मैटर नहीं बचा. ठीक है. समझ गए. अब आपके पास मैटर नहीं बचा, आप चुप होके नहीं बैठो, कुछ भी बोल दो. ठीक है. मैटर खत्म होने के बाद मैम रिलेवेंट बोल सकते हैं उसका. हाँ थोड़ा सा इररिलेवेंट भी बोल सकते हो, पर मैटर खत्म होने के बाद. शुरू में इररिलेवेंट बोलोगे तो टास्क रिस्पॉन्स के बैंड उड़ जाएंगे.
यस मैम। Okay. मैडम मतलब जब तक एग्जामिनर नहीं रोकता है तब तक बोल ही जाना है। तब तक बोले, अब एग्जामिनर रोके तो रुक जाना है। हाँ मतलब वो तब रुक जाना है, मतलब जब तक वो रोके नहीं तब तक बोल ही जाना है। वो रुक जाना है इमीडिएटली, ठीक है। उनको देखते रहना, जैसे वो रोके रुक जाना, ठीक है। ठीक है मैम। एक मैं बोल दूं क्यों कर मैम मीनू पहले जिनकी टर्न नहीं आई बेटे। मैम मीनू मैम ऐसे एक मिनट ऐसे ही होते हैं, अगर आप पहले रहते ना आपको सारा करके बोल रहे हो। ओके नेक्स्ट क्या है? मैम मीनू नमन का हो गया? नमन का? मैम अर्जुमन। हाँ नवनीत। हाँ अर्जुमन। मैम मीनू का मैम कल दिया था। हाँ अर्जुमन चलो। स्किल्स मैम। हाँ बोलो क्या क्यू कार्ड है? स्किल्स के ऊपर मैम। चलो अपना वीडियो ऑन करोगे? नो मैम। चलो स्टार्ट। Okay. In this contemporary epoch, having a skill set is extremely important. I have this habit of continuously enhancing my skill set. Recently, I acquired a new skill. During the corona pandemic, I had to stay at home for 6 months. Initially, I had wasted my time watching web series or playing games, but later on, I planned to make the productive use of time at my disposal. So since I did not have much work to do, I started spending sizable portion of my time by watching videos related to cooking. Initially, I felt a little uncomfortable, but once I had come to know about the basic of cooking, I became more interested in it. And with a dedication, determination, and discipline, I have enhanced my cooking skill. Now, all my family members and friends are impressed by my culinary skill, and they praised the delicious and mouth-watering dishes cooked by me whenever I serve them. Being a digital nomad, I would like to teach the skill of cooking to other people through internet, and I have already designed an online course which would be beneficial for the people of all walks of life. And I sincerely believe that this skill has brought me a paradigm shift in my life. My fitness level has gone high because I can cook the healthy food of my choice. Apart from this, I have got an opportunity to earn money. In a nutshell, this skill has made me a better person. I always believe that do the things which you are truly passionate about, and you will rock it. सॉरी अर्जुमन। ओके मैम अभी टाइम है? नहीं हो गया टाइम हो गया। ओके मैम। आपने डिजिटल बीइंग ए डिजिटल क्या बोला? नोमैड। डोंट यूज दिस। अच्छा मैम NOMAD क्या मतलब होता है नोमैड? मतलब मैम मैं ट्रैवल करती हूँ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, तो नोमैड मैं ऑनलाइन। हाँ मैम नोमैड का मीनिंग यही था। A member of a community that moves with its animals from place to place. No ma'am, but मैंने vocabulary They were thesaurus पे देखी थी। They were nomads who hunted game and tended their herds of cattle. वो जो I don't know मैम, मैं thesaurus पे बताया कि जो डिजिटल लोग जाती होते हैं ना, ये epoch word यूज करा है। हाँ मैम। उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन बोली है आपने? epoch। ओके आप ना ऐसे वर्ड्स मत डालो। अच्छा मैम। ओके ओके मैम। एपक है या ईपॉक है? ओके ईपॉक। हाँ मैम। तो ये वर्ड्स मत डालो, जरूरत नहीं है इनकी। ओके मैम ग्रामर आई हैड कम टू नो नहीं आना, आई केम टू नो आना है। अच्छा फिर आपने कैलिनरी बोला है, कैलिनरी नहीं होता, कैलिनरी स्किल्स होता है। ओके। फिर आपने इन अ नटशेल बोला क्लीशेड है, क्लीशेड की हिंदी पता है? किस्सा पीटा। हाँ मैम। क्लीशेड लैंग्वेज तो बिल्कुल मत बोलना। आज मैम इडियम से मैंने सुना कि 1 बैंड इंक्रीज होते। हाँ क्लीशेड इडियम से 1 डिक्रीज होता है। ठीक है, आपको नए इडियम ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा मैम। वो जो इतने हाइपर यूज्ड नहीं है। अभी मोगैम्बो खुश हुआ कोई बोले तो बड़े अच्छा लगता है आपको? अभी क्या लगता है? मैम उससे बेटर यूज ही ना करो।
जब ये नहीं, हाँ बिल्कुल ना यूज करो, बिल्कुल मैं नहीं तारीफ करती हूँ, क्लीशेड तो बिल्कुल मत यूज करो। यस मैम। हाँ ये मैं बस, बाकी आपने बहुत ही अच्छा बोला है। ओके, अगर आपको 7+ जाना है ना, आप ये बातें नहीं करोगे। ओके, नो एक्स्ट्रावर्ट, नो इडियम्स। हाँ ठीक है, ठीक है, नो एक्स्ट्रा हाइपर ऐसे कोई वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैम सपोज अगर जो इडियम्स और फ्रेज एक भी नहीं लगाते हैं तो भी 8 आने के चांसेस है। 100%, 200% मेरे घर में एग्जाम्पल मैम। ओके, मेरे घर में 8:30 वाले और 9 वाले बच्चे भी हैं घर में। ओके, स्पीकिंग में। यस मैम, और यस मैम। उन्होंने किसी ने नहीं यूज करे, किसी ने। तो मतलब याद करने की जरूरत नहीं है ना इडियम्स और बिल्कुल फ्रेजेस नहीं, को। बिल्कुल नहीं। ओके ओके मैम, यस मैम। बिल्कुल नॉर्मल बोल के आए वो, स्पेशली बोला था कि हमें देखना है कैसे बैंड आते हैं। ओके, नॉर्मल रेगुलर रूटीन इंग्लिश बोलना, आपको ऐसे बोलना है, आपको एग्जामिनर को ये शो करना है कि इंग्लिश इज वेरी यू नो इजी फॉर यू, आप बोल सकते हो, आपको हर चीज की सी यू, आप ना किसी नॉर्मल वर्ड के लिए स्ट्रगल करते हो ना, वो नेगेटिव होता है। आप हाई वर्ड सोच के फिर उसके लिए तो स्ट्रगल करोगे ही करोगे ना सेंटेंस में, और उस वर्ड को डालने के लिए आप अपनी ग्रामर की भी थोड़ी गलतियां ज्यादा कर दोगे, तो बिल्कुल यूज मत करो वर्ड्स को भूल ही जाओ। ओके मैम। हाँ, और जो नॉर्मल रूटीन वर्ड्स हैं उनको करेक्टली यूज कराओ बस, ठीक है। दैट इज यस मैम, थैंक यू। वैसे ना टाइम हो चुका है, पर मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ आपको, अब जो 2-3 बच्चे रह गए उनका करा देंगे मैम डांस को। मैम मीनू। हाँ अर्जुमन, अगर मैं एग्जामिनर हूँ ना, मैं आपको 7 बैंड दे दूंगी इसके, पर मेरे को लगता है कि आप 7 से सेटिस्फाइड होने वाले बच्चे नहीं हो, आपको 8 चाहिए। सही बोल रही हूँ मैम, मेरी रिक्वायरमेंट। हाँ, तो मेरे को लगता है कि ये चीजें मत करना, तो 100% 7+ जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलो, नेक्स्ट कौन है? मैम मीनू। मीनू, हाँ जी। मैम टेल द ट्रूथ वाला था आपने दिया। हाँ। Here I would like to talk about the truth that I told to my friend. Her name is Supreet Kaur, and here I am talking about an incident that took place in the 4th standard. She was an expert in mathematics, and I was good at mathematics. However, she could able to calculate all the digits within a few seconds, and I was unable to calculate all the digits in this time. So I learned tricks of mathematics from her. She gave me a book, but I forgot that book in the library of my school. So I was feeling guilty at that time because of my carelessness. So I made my mind to tell the truth to my friend. So she got mesmerized by seeing my honesty, because according to her, it was very difficult to tell the truth, especially when we forgot anything. So she said to me that you should not worry for this book, and I will buy this book. But I said to her, it is my mistake, and I will buy this book for you. Then at that time, I realized my mistake, and I did not repeat this mistake again. Okay. And I okay, 1.5 minute बोला आपने मीनू, आपने ना रिपोर्टेड स्पीच ले आए हो अपने, she said to me and I said to her. yes, ये ना पैर कुल्हाड़ी पे ले जाने वाली बात हो जाती है। पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं होता, पैर कुल्हाड़ी पे ले जाने वाली। She said to me, you should not. She told me that I should not. रिपोर्टेड स्पीच आपकी गलत गई है। ओके मैम। तो इसको अवॉइड ही करो, आपने ऐसा क्यों लाना है बीच में? मैम मुझे लगा कि उसने कहा, तो मैम फिर इसलिए उसने कहा तो आगे आप सही बोल ही नहीं पा रहे हो। ओके मैम। और फिर मेस्मराइज्ड, वो मंत्र मुग्ध हो गई मेरी ऑनेस्टी देख के। शी वॉज वेरी हैप्पी। सिंपल बोलो, मेस्मराइज्ड वर्ड आपने डाल तो लिया, पर यहाँ पे मेस्मराइज्ड जच रहा है मैम, नहीं अजीब लग रहा है। यस मैम। ठीक है, कोई डांस शो है या कोई पेंटिंग है बहुत अच्छी है, वाज मेस्मराइज्ड किसी की कोई, तो आप वो तो मेरे को बिल्कुल भी वहां पे बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे वर्ड घुसेड़ा आपने।
और Okay, एक ma'am. जगह आपने शुरू में however बोला, however वहां पे बिल्कुल ही मिसफिट है. Okay, ma'am. मैम what बोलना था? हाँ मैम what बोलना था, जैसे कि I was unable to calculate that digits तो within a सिंपल few बोलो seconds. कि वो कैलकुलेट कर रही थी और आपने पहले बोला वो बहुत अच्छी थी, however वो कैलकुलेट कर लेती थी बहुत जल्दी, वो बहुत ही मिसफिट था. Okay, एंड ma'am. दैट टोटली रॉन्ग था. Okay, ma'am. है ना. तब मैं Yes. बोलती हूँ बच्चों को, ये लगता है कि however moreover नहीं डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, वो सारा ये सारी गलतियां आई हैं. आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है पर आपकी ये मतलब ये गलतियां ऐसी हैं कि ये आपने ज्यादा अच्छा बोलने के चक्कर में करी है. आप ये वर्ड्स वगैरह जो कनेक्टर्स है ना, Yes, कनेक्टर्स को ma'am. स्टैंड आउट होने ही नहीं चाहिए. ऐसे Okay. कनेक्ट करो कि पता ही ना चले कनेक्ट कर दिया. Okay, ma'am. है ना. और Yes, जहाँ की ma'am. जरूरत है वहां मत यूज करो. दैट इज. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, और ma'am. said to me and I said to her अगर बोलना है तो उसको फिर रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से करो, उसका करेक्ट बोलो. Okay, ma'am. ठीक My है, ma'am. teacher told me you should work hard. ये गलत है. क्या होना चाहिए? My teacher told me That That you should work hard. I should work hard. I should work. Okay, ma'am. I should work hard. My teacher told me you should go there. And my teacher told me I should go there. That I should go. that I should. That I go there. Okay. Okay, मैम मैं वर्क करूंगी मैम इस पे मैम, जो हाँ. इनडायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच हाँ पे. हाँ indirect direct तो वर्क करना पड़ेगा ना, फिर ठीक जाएगा. ठीक ओके है. मैम. यस मैम. हाँ जी. अब बंद करूं. किसका रह गया? मैम सहजदीप. मैम रुमाना. रमन. सहजदीप Ma'am, तेरे को अपने Darshana. नाम देना है. चल सहजदीप का सुन. रमन. अब कब अभी तक कहाँ थे? सॉरी मैम. हाँ अभी तक कहाँ थे? चलो बोलो फटाफट. मैम मेरा क्यू कार्ड था डिस्क्राइब अ डिसीजन मेड बाय समवन दैट यू डिसएग्रीड विद. हाँ चलो बोलो. Okay. We all have to make a decision time to time. Sometimes the decisions made by us are not agreed by all. But here I would like to talk about a decision that was made by someone and with which I was disagreed. That decision was made by a teacher when I was in my 10th standard. Our school organized a English speaking debate competition, and one of the participants was absent on that day. So my teacher forced me to participate in the competition before few minutes. And because of this, I was disagreed with his, because I was not well prepared for the competition, and this was so difficult for me to stand in front of public without any preparation. Usually I am a very humble children and I always respect my elders. So this was a decision made by my teacher with which I was disagreed. Okay, you've spoken 1 minute and 20 seconds, Sahajdeep. I was disagreed means आपके साथ किसी ने disagree करा. आपने disagree करा तो क्या आएगा? I disagreed. I disagreed with it. Was क्यों लगा रहे हो बीच में? पैसे वॉइस क्यों लगा रहे हो? आप तो सब्जेक्ट हो. आपने disagree करा है. ठीक है. My teacher forced me before few minutes, नहीं, just a few minutes before the show. Okay. I was disagreed. आपने 3-4 जगह कर दिया. I am a very humble children. आप एक हो के बहुत सारे हो. हाँ. I am a child. के children? Child. और आपने 1 minute 20 second बोला सहजदीप. अब आपको बहुत वर्क करना है इस पे. आज तो 6 भी नहीं जाएगा इस तरह से. ओके. आप ना सिंपल छोटे सेंटेंस करके बोला ना, डेफिनेटली 6 या 6+ चला जाएगा. आपको ये पैसिव और एक्टिव वॉइस पे थोड़ा वर्क कर लो. आई वॉज डिसएग्रीड नहीं, आई डिसएग्रीड विद दैट. ओके. ठीक है मैम. आपको ये करना है. मैं तभी बच्चों को कहती हूँ अगर आपकी ये गलतियां ना, तो जो हमने बनाए हैं उसको बेस रख के उसी को थोड़ा सा ठीक करके बोल के प्रैक्टिस कर लो. सारे आप अपने आप ऐसे बनाओगे ना, फिर आपके
सारे हमें आपकी पहले ग्रामर उसकी ठीक करनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करो कि सारे 2-2 मिनट तक पहुंचाओ आज। और ये बैठ के, कब है आपकी स्पीकिंग? मैम 4th of March है। 4th of March है, तो आपके पास काफी दिन है, इन पे वर्क करो। और शीशे के आगे बैठ के पहले अपने को हर क्यू कार्ड 2-2 मिनट तक पहुंचाओ। फिर आपको टीचर मिले हुए हैं, उनको बोलो 3-3 4-4 क्यू कार्ड पर डे आपसे आपको कराएं। ठीक है, और सारे आपको 2-2 मिनट मिनिमम। और आप पैसिव वॉइस जहाँ पे भी आपकी गलत जाए वो करेक्ट करें। ठीक है, ठीक है मैम। डू दैट। चलो आज मैं फिनिश कर रही हूँ। कौन रह गया? मेरे को नाम लिखाओ जो रह गया। मैम स्विनल, मैम रुमाना, मैम रमन, रचना मैम, रमन, हाँ, और रुमाना, रचना चंद्र, हाँ, और मैम मैत्री, रचना, और मैम रचना, मैम विक्रम, नवनीत, विक्रमजीत, मैडम अजय, विक्रमजीत, विक्रमजीत, हाँ, विक्रमजीत, अजय मैम, जसमिंदर सिंह, और बताओ। अजय, रचना मैम, अजय और रचना चंद्र, प्रीत, प्रीत और रचना, हाँ, मैम रचना चंद्र, रचना और जसमिंदर सिंह, हाँ, प्रजीशा, प्रजीशा और जसमिंदर। मैम मेरा रह गया है मैत्री, पर अभी 27 को मेरी एग्जाम है, तो हाँ मैत्री, आप ना ऐसे करना, आप मुझे ना एक ऑडियो बना के व्हाट्सएप पे भेज दो। ओके, लाइक क्यू कार्ड का? हाँ, 2 मिनट का, समझ गए? ओके, कोई बात नहीं। मैम मेरा भी रह गया, मेरा नाम जसमिंदर सिंह है। तो मैं, आप मुझे सारे जने ना एक पर्सनल मैसेज करना, जिन जिन के भी मैंने नोट करे हैं नाम। देयर आर 11 स्टूडेंट्स, तो मैं रोज, अब मैं आज 11 का फीडबैक नहीं करा पाऊंगी, तो मैं 2-2 को रोज एक डेट देके उनको फीडबैक उनको पर्सनली करा दूंगी। ठीक है? ओके मैम। अब मुझे ये ओके मैम। स्टूडेंट नाम है, मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। ये क्लास में इससे लंबी नहीं कर सकती हूँ, बहुत टाइम हो गया। ओके मैम। चलो, ओके, बाय, एंड आई होप Thank यू you. ऑल लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस कोर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So many things. Yes, ma'am. आपने अगर नहीं भी Yes, बोला, ma'am. ये हमने बहुत कुछ सीखा है। मैम समझ बहुत कुछ लग रहा है मैम। हाँ, चलो, ओके, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.